Good evening and a very warm welcome to all of you from 6th edition of Ahmedabad International Literature Festival. This festival was physically opened on 28th February in Hotel Hyatt Vastrapura, Ahmedabad. Since then, we have been continuing online sessions on each Saturday around this time only, depending upon the situation. And it has been viewed and taken very nicely by the audience across the world. We have been getting the comments, we have been getting the feedbacks about the utility, about the usefulness, about the value it creates, about the positivity it brings among the lives of the audience. We are very happy and we'll keep on coming with new sessions, new ideas every week around this time only. Today we have two very special guests. Dr. Hiralal Saab, IAS, is Additional Mission Director, National Health Mission, Government of Uttar Pradesh. And as of now, he is observer in the West Bengal elections and joining us live from Kolkata. A very warm welcome to you, sir. Thank you. We have been joined by our own Dr. Deepak Acharya Saab, a virologist, keeps appearing on television channels quite often because of this corona and his expertise in herbal medicines, herbal treatments. Today also we saw him on TV9 National News Channel expressing his views about spread of COVID. Deepak Saab, आपका बहुत बहुत स्वागत है. शुक्रिया सर, शुक्रिया. We have a very young student, Arya Patel, who is a student of 9th and just entered 10th. We are very glad to inform everybody that the young girl has written two books. One book is already published and in the public domain. The other one has gone to publishers, is going to be published soon. Arya, a very warm welcome to you. Before we open up the sessions, I would like to inform my audience that this broadcast is available on Ahmedabad International Literature Festival Facebook page. You can also join in through YouTube, youtube.com/C/Ahmedabad International Literature Festival. It is available there also. It is available on our Twitter handle as well. That is AHM Litfest. It is being broadcast live on all the three destinations. Before we proceed, we have a very small video what have been happening in the last 6 editions rather. Please have a look, then we'll start the discussion. Ahmedabad International Literature Festival, which aims to promote reading and writing, particularly in children and young adults, started with a bang in 2016. Mr. Umashankar Yadav, the founder-director of AILF and Icon Education Foundation, with his able and committed team, has taken the literary discourse of the city to a new height, with 3 successful annual editions of the Literature Festival. इस तरह के लिटरेचर फेस्टिवल के माध्यम से उसी इक्वल प्लेटफॉर्म और उतना ही ऑनर मिलना चाहिए, वो उन्नत समाज की निशानी होती है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है. આ પ્રક્રિયા છે તે જળ બિંદુમાંથી મોટી થવાની પ્રક્રિયા છે. AILF जैसे पहल रखी गई है, ये बहुत जरूरी है. AILF has gained widespread appreciation and popularity and has been applauded for its continuous and commendable work. Every time AILF proudly presents a collective diverse of distinguished speakers from the fields of literature, art, cinema, journalism, business, politics, academics and more, who shared their insightful opinions and compelling takes on a variety of subjects. અહીંના નાગરિકોને આર્ટ, કલ્ચર, લિટરેચર આ તમામ બાબતોમાં પણ એક મંચ મળી રહે અને કલા અને સંસ્કૃતિને પણ પ્રોત્સાહન મળે. સંસ્કૃતિ આપણી કલા એ આજની નવી પેઢી સુધી પણ પહોંચે અને એ લોકો પણ આપણી આ જે સંસ્કૃતિ છે એને ગરિમાને જાળવી રાખે તેના પ્રયાસ રૂપે અમે આ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કર્યું. A host of other activities like book launches, authors' interactions with attendees, workshops, art and craft displays are also a huge draw for people. Various contests and awards make the festival even more fascinating and lively. Cultural events of the AILF with musical evenings and engaging literary discussions are promoting literary tourism to Ahmedabad.
making the city an important literature destination in the country. Ahmedabad International Literature Festival resolves to continue serving literature lovers the best of everything that the world has to offer. इनका वर्णन मिलता है। हमारा संपूर्ण साहित्य, उसका मतलब ही ये है जो समाज का कल्याण करे, हित करे, परोपकार करे, भलाई करे, वो साहित्य है। जिस साहित्य में ये वर्णन नहीं तो वो साहित्य नहीं, एक कल्पना मात्र हो सकती है। We welcome you back. I would request Arya Patel to introduce all the guests, both the guests, please. Arya is a student of 10th standard from Eklavya School, Ahmedabad. She is a passionate writer. She has written 2 books, as I informed earlier. One has been published and the other one is under publishing. She comes from the family of writers. Her sister Ashi Patel is also a poet and has written 2 books. One book is already published. Yes, Arya, you can go ahead, please. Thank you so much, sir. Welcome to Ahmedabad International Literature Festival. The pandemic has come with many unexpected challenges, and the whole world is trying to find solutions in different settings. In today's session, our esteemed speakers will discuss about learnings from the rural India, safer refuge during the COVID pandemic. In today's talk, we have with us Dr. Hira Lalji, who can best elaborate about today's topic. He himself has lived in deep rural area and farming environment in his childhood. He acquired BTech in Electrical Engineering, Master's degree in Public Administration and PhD. He has served in many positions at Go UP, like Managing Director, UP Small Industry Corporation Kanpur, Special Secretary Culture and Director Culture, Special Secretary Rural Development, and many more. He has received many awards for his innovative work. Currently, he is Additional Mission Director of National Health Mission and Additional Project Director of Uttar Pradesh State AIDS Control Society. He is a social leader. He supports the helpless and needy. His egoless and simple style is his core strength. He has deep understanding and clear vision of how social economic transformation can be achieved, especially by mobilizing education, health, and agriculture sector with overall development of all parts of society. He mostly adopts formula of no cost or low cost, convergence of available resources, and involvement of stakeholders. He is in plan to do one more research to keep in touch with reading and writing. Welcome, Dr. Hira Lalji. We also have with us Dr. Deepak Acharya ji, who is a PhD, a scientist, and a nature enthusiast. After majoring in plant science, he did his doctorate also in plant science. Later, after studying ethnobotany, he started research in Patalkot in Chhindwara. At present, he and his company, that is Research and Development at Abhumka Herbal Private Limited, are actively working in formalizing indigenous herbal knowledge into finished products for human and animal healthcare. He is also actively involved in gathering information about herbal healers. Dr. Hira Lalji and Dr. Deepak Acharya ji, we warmly welcome you to Ahmedabad International Literature Festival. Thank you. And now, now over to our moderator, founder and director of Ahmedabad International Literature Festival, Uma Shankar sir. Thank you so much, Arya, for a very warm introduction to both our guests. You can be in the studio, and if you have any questions, you can join us at any time to ask the questions from our guests. Yeah, दीपक आचार्य साहब एंड हीरालाल साहब, आज जब हम रिसर्च कर रहे थे गांव के बारे में और आप लोगों के काम के बारे में, तो एक मुझे बहुत अच्छा शेर मिला। मैं उसको आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। शायद आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, सुना है उसने खरीद लिया है करोड़ों का घर शहर में, मगर आंगन दिखाने आज भी वो बच्चों को गांव लाता है, मगर आंगन दिखाने आज भी वो बच्चों को गांव लाता है। ये हम सब की कहानी है, जिन्होंने शहरों में मकान तो खरीद लिया है,
लेकिन साल में एक बार हम जरूर गांव जाते हैं अपना आंगन दिखाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आंगन नहीं मिलते हैं। आज हम एक बहुत अलग तरह की बात करने जा रहे हैं। एक बार हम किसी फॉरेस्ट ऑफिसर से बात कर रहे थे, हमने बोला कि हम आपके एरिया में आके एक लिटरेचर फेस्टिवल जैसा करना चाहते हैं, मतलब एक गैदरिंग करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को लिटरेचर के बारे में बात बताना चाहते हैं। उन्होंने बोला, देखिए आपका जो पर्पज है बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे पर्पज के साथ वो मेल नहीं खाएगा, मतलब उसका उल्टा है। और वो दीपक आचार्य साहब उसको बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं। फॉरेस्ट एंड जो नेचुरल ड्वेलिंग्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो लोगों को अपने से दूर रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ आप आके उनकी जो हैबिटेट्स हैं, वहाँ पे जो रहने वाले जानवर हैं, जंतु हैं, पक्षी हैं, उनको आप डिस्टर्ब करें, मतलब वहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा। वो बोले कि आपका पर्पज है कि आप लोगों को बुलाएं, हमारा पर्पज है हम लोगों को दूर करें, वहां पे हम वहां आने नहीं देना चाहते हैं। तो हीरालाल साहब का पर्पज है कि वो मॉडल गांव बनाना चाहते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट हो, जहाँ पे विकास हो, और सारे शहरों जैसी सुविधाएं करीब करीब वहां पे हो जाएं, और गांव की खुशबू भी रहे। जहां तक मैं आपको समझता हूँ दीपक साहब, फिर दोनों लोग आप अपने हिसाब से इसका जवाब दे सकते हैं। आप शुरू से ही गांव को बहुत पसंद करते आए हैं, उनमें जो भी व्यवस्था रही है, मतलब जिसको बोलते हैं स्टेटस को वाली स्टेटस, कि वो पहले से ही अच्छी है। हम उसमें अब जरा शहरों का विकास नहीं ले जाना चाहते हैं, शहरीकरण नहीं उनमें होने देना चाहते हैं, जिससे कि जो उनकी खुशबू है, जो उनकी एक नेचुरली हर्बल हीलिंग कैपेसिटी है, वो ना चली जाए, और लोगों की जो मासूमियत है वो ना कहीं गायब हो जाए शहरीकरण और विकास को देखकर। तो हीरालाल साहब, पहले आप बताना चाहेंगे कि ये जो आप कर रहे हैं, क्या ये डॉक्टर दीपक आचार्य साहब का जो पुराना कॉन्सेप्ट है कि शहरों में, गांव में जो व्यवस्था थी वो एकदम सही थी, और आप उसको कैसे प्रिजर्व करते हुए विकास करेंगे मॉडल गांव के थ्रू? देखिए, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस इवेंट में। देखिए, जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है और जो शहरीकरण का कॉन्सेप्ट है, आखिर हम लोग शहर की तरफ जाते क्यों हैं? बेसिक क्वेश्चन ये है कि हम गांव को छोड़ रहे हैं, शहर की तरफ जाते क्यों हैं? इसका आंसर हमें ढूंढना चाहिए। इसका आंसर ये है कि जो गांव में हमारी ताकतवर चीज थी, उसको हमने कमजोर समझ लिया, हमसे ये भूल हुई। जो हमारी ताकतवर चीज थी उसको हमने उसे कमजोर समझ लिया और उसको छोड़ दिया, और जो कमजोर चीज थी उसको अडॉप्ट कर लिया। एक बात, गांव में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो है ही नहीं, जो हमारी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है और स्कूल वहां नहीं है, या तो उस गांव में नहीं है या नियर बाई नहीं है, तो आखिर बच्चा क्या करेगा? अगर उसे पढ़ना है तो कहीं ना कहीं उस पढ़ाई के खोज में उसे जाना है। तो जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, उसका बेसिक थॉट प्रोसेस ये है कि जो हमारी जरूरत है उसको हम वहां लाएं, गांव में उसको पूरा कर दें। तो जो माइग्रेशन का ये कारण, जो चीज नहीं उसको खोजने के चक्कर में जाते हैं, वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा, सोच ये बदलना है कि जो चीज पहले जमाने में हम लोग जो है गोबर ऑर्गेनिक खेती करते थे, फिर धीरे धीरे हमने ऑर्गेनिक खेती को खत्म कर दी और केमिकल खेती पा गए। अब फिर ट्रेंड बदल रहा है। लो, अभी मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, साहब आप ऑर्गेनिक खेती से बात करते हैं तो उसमें उपज कम होती है, इकोनॉमिकल नहीं है। ये बात सही है कि ऑर्गेनिक खेती अगर ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो इकोनॉमिकल नहीं है, लेकिन अब बहुत सारे टेक्निक्स और साइंस आ गई है कि वो इकोनॉमिकल ऑर्गेनिक खेती हो गई है। दूसरा, मैं एक पहनावे का उदाहरण दूंगा। हम गांव में धोती, कुर्ता, पैजामा, लुंगी, जो हमारा एक ट्रेडिशनल था, और उससे हमारी पूरी बॉडी को एयर मिलता था। हमने, वो हमारी ताकत थी, वो टेस्टेड एंड ट्राइड था लोकल एटमॉस्फेयर में। हमने टाई, सूट, पैंट पे हम आ गए, जबकि टाई, सूट, पैंट हमारा ना पहनावा था और ना हमें वो सूट करता है। लेकिन जो हम लोगों ने अंधाधुंध नकल किया बिना रीजनिंग के, तो उससे क्या हुआ? हमारा गांव का रोजगार गया, हमारी बीमारी बढ़ी, हमारा हेल्थ का नुकसान हुआ। तो जो आप कहना चाह रहे हैं, मेरा ये कहना है
कि मॉडल गांव में हमारे जो सोच में कुछ गड़बड़ी आ गई है, हमें ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए, केमिकल नहीं करना चाहिए, ये सोच बदलना है। हमें धोती कुर्ता या जो वहां का लुंगी तहमद जो वहां ट्रेडिशनली सुटेबल था, मजबूती थी, उसको लाना है। ये जो अंधाधुंध नकल करके हटाना है। हम पहले मिट्टी के बर्तन में खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में। अब हम बोन चाइना में खाना खाते हैं, उसका नाम ही है बोन, चाइना बोन, जो भी आप कह लीजिए, वो बोन उसमें जुड़ा हुआ है। तो पहले मिट्टी वाला अच्छा था, क्लाइमेट के लिए सूट करता था, स्वादिष्ट खाना होता था, उसको हमने गरीबी मान लिया कि अगर हम मिट्टी के बर्तन में खाते हैं तो उसके स्वाद से कोई लेना देना, वो हमारी ताकत थी, उसको छोड़ करके। और बोन चाइना, अगर उसको शब्दों में ले तो बोन माने हड्डी वाले में खा रहे हैं। तो ये जो एक सोच है, ये बदलने का काम मॉडल गांव का है। और जो सुविधाएं नहीं है गांव में, अब गांव में रोड कच्चा है तो कीचड़ होगा, नुकसान होगा, उसे पक्का करना चाहिए। तो जो आवश्यकता है उसको लाना, और जो हमने गलत फहमी में या किसी नक्शेबाजी में या जान बिना रीजनिंग के अपनी अच्छी ताकतों को कमजोर समझ के छोड़ दिया, उसको अडॉप्ट करना। तो आचार्य साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर initial ideas about what your model गांव is looking for. दीपक आचार्य साहब, आपको क्या लगता है कि हमें जो हीरालाल साहब ने बताया कि हमने जो ट्रेडिशनल ताकत को खो दिया है, हम लुंगी से पैंट में आ गए हैं, और अगर हमें वहां पे सड़कें, आज मैं आपके आपके बारे में बहुत सारा रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कि आप मिट्टी में जाइए, आप धूल में जाइए, आप कच्ची सड़कों पे जाइए, और आप तो कुछ ना कुछ लिखते रहते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर से कूद या उधर से कूद, मत भूलो आना खाना अमरूद, नमक लगाकर काट के खाओ, दे दनादन ताकत पाओ। ताकत पाओ। ये जो आप छोटी छोटी बातें लिखते रहते हैं फेसबुक में, छोटे छोटे आपके जो कपलेट्स होते हैं, जो शेर होते हैं, जो कविताएं होती हैं दो दो लाइनों वाली, वो बहुत यूजफुल होती हैं, लोगों को एकदम सीधे पकड़ लेती हैं। तो आप जो ये बता रहे हो कि नहीं, गांव में पक्की सड़कें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज भी मैं पढ़ रहा था, कहीं आप बता भी रहे थे कि इम्यूनिटी जो हमारा, अगर मिट्टी जाएगी, आपको छींक आएगी, तो आपका जो अंदर का इम्यून सिस्टम अगर ओवर इम्यून हो गया है तो वो यूटिलाइज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने में मदद मिलेगी। तो जो आपका क्या कॉन्सेप्ट है, आप वैसे ही रखना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो? फिर हम आगे की बात करेंगे। उमा शंकर जी, थैंक यू। पहले तो सबसे पहले खूब सारी शुभकामनाएं अहमदाबाद इंटरनेशनल फेस्टिवल को, और हीरालाल सर भी साथ में हैं, तो ये बड़े अच्छी बात है और अच्छा विषय है हम लोगों के लिए। जो खास बात जो मुझे लगती है हमेशा मुद्दे की, वो ये लगती है कि मतलब मैं विकास विरोधी कतई नहीं हूँ। लोग कई बार इस बात से चिंतित हो जाते हैं कि दीपक आचार्य मतलब विकास का विद्रोही है, विकास बिल्कुल नहीं चाहिए इस बंदे को। ऐसा नहीं है, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, जिसे डेवलपमेंट कहते हैं उसका विरोधी नहीं हूँ। मैं विरोधी हूँ ट्रांसफॉर्मेशन का, जिसकी बात सर ने करी अभी, कि हम अपने पहनावों को भूल जाएं, अपने परिवेश को भूल जाएं, अपने रहन सहन को और अपने प्राचीन और पुरातन ज्ञान को भूल जाएं। वो घातक होगा, और वो घातक कब होगा, कब हो रहा है और कैसे हो रहा है, उसकी हम मिसाल हम सामने देख रहे हैं कि इतने सारे चीजें हैं जिनको हमने नकारते चले गए, भूलते चले गए। अब आप देखिएगा पिछले 30 सालों में, शुरुआत के 10 साल जब देखते हैं हम, 90s से देखते हैं 2000 तक का हमारा जीवन यापन देख लें, और 2000 के बाद में और 2010 के बाद में अब देख लें जीवन यापन, तो मुझे हमेशा से लगता है कि शायद मैं आखिरी पीढ़ी हूँ जिसने उस दौर को देखा है जब हम पोस्ट कार्ड लिखा करते थे, अंतर्देशीय पत्र लिखा करते थे, और एक अलग चार्म हुआ करता था। हम वो दौर के लोग हैं जब हम मिट्टी पे वाकई में सन कर खेलते थे, और बचपन में जब हमें चोट लग जाती थी तो घुटने छिल जाते थे, तो पिताजी कहते थे मिट्टी उठाकर लगा लीजिए चोट के ऊपर में, बस ठीक हो जाएगा। ये वो दौर था। और फिर एक दौर ऐसा आया जब हमने पढ़ाई करनी शुरू करी। मैंने एमएससी प्लांट साइंसेस में करी, और पीएचडी फिर मैंने माइक्रोबायोलॉजी में करी। और जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहा था तब मैं पढ़ा मैंने कि भाई मिट्टी में तो एक्टिनोमाइसिटी जैसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक होते हैं नेचुरल। तो वो जो पिताजी कहते थे मेरे कि मिट्टी लगाओ, तो वो कहते थे कि वो एंटीबायोटिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, वो लगाइए आप। अब उसको रिप्लेस कर दे और हम सिंथेटिक कंपाउंड के ऊपर चले जाएं, तो ऑब्वियसली ऐसी बात है कि वो बहुत सारी चीजें बदलने लगेगी। वो जो दौर आया एक ट्रांसफॉर्मेशन का, कि समय रहते रहते हमने बहुत सारी चीजों को बदल दिया। एक उदाहरण देता हूं मैं हमेशा पातालकोट का, जहां से मैंने अपनी रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह है जो 3000 फीट नीचे
गोंड और भारिया जनजाति के लोग रहते हैं, आज भी वो सामाजिक जो मुख्य धारा उससे कटे-फटे थे काफ़ी काफ़ी समय तक। और वहाँ पर 90 के बाद में, दशक के बाद में लोगों का जाना शुरू हुआ, बाहरी लोग ने वहाँ पर प्रवेश करना शुरू करे और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बाहरी लोगों से मिलना शुरू किए और फिर उनको प्रलोभन दिया गया, छोटी-छोटी चीज़ें वहाँ की वनस्पतियाँ, जड़ी-बूटियाँ, तमाम चीज़ें लोग बाहर के बटोर के ले जाने लगे, लालच दिया जाने लगा। पारंपरिक रूप से महुए की शराब बनाई जाती थी वहाँ, जो उनकी परंपरा का हिस्सा है और शराब वो वैसा नहीं पीते कि वो लुढ़के पड़े हैं या गालियाँ बक रहे हैं, वो अपने स्वभाव से वो उसका सेवन करते हैं, उनका परंपरा है, उनकी परंपरागत पद्धतियाँ हैं उसको बनाने की। बाहर के लोगों ने जाकर अंग्रेजी शराब गिफ्ट करनी शुरू करी उन लोगों को। बाहर के लोगों ने जाकर वहाँ पर MP3 प्लेयर देने शुरू कर दिए, तो वो घड़ियाँ देनी शुरू कर दी जिसमें लाइट जलती हैं। वो मोबाइल्स फ़ोन भी आ गए धीरे-धीरे उनके पास में। उससे ये प्रॉब्लम क्या हुआ दरअसल, जो उनका कल्चर हुआ करता था सोशल, जिसमें रिचुअल्स होते थे, संगीत होते थे, अन्नप्राशन का कार्यक्रम है, बारसा है, जस कीर्तन जो होते थे, जो पारंपरिक गीत संगीत होते थे, उनके नृत्य होते थे, वो सारे खत्म हो गए और अब चमेली बाई वाला गाना जब बजता है और उन आदिवासियों को नाचते हुए देखता हूँ, तो मैं उस बात का विरोधी हूँ। मैं उस बात का विरोधी हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके कल्चर का हुआ, जो बच्चे नहीं सीखना चाहते। अब वहाँ पर जाता हूँ मैं, अभी भी जाता हूँ तो कई बार ये देखता हूँ कि छोटे-छोटे बच्चे पिताजी उनके महुआ बीनने के लिए गए हुए हैं जंगल में, लकड़ी काटने के लिए गए हुए हैं, छोटे-छोटे बच्चे, क्योंकि मोबाइल टावर्स आ गए हैं वहाँ जंगलों में। छोटे-छोटे बच्चे वो लगा के टिकटॉक देखते रहते हैं या वो फनी वीडियोज़ देखते रहते हैं इंस्टाग्राम पर। ये कितना कल्चरल डिग्रेड हो रहे हैं कल्चरली, वो उसकी फ़िक्र करनी बहुत ज़रूरी है हमें। तो हमें वो प्रयास करने पड़ेंगे जिस तरह से सर ने अभी कोशिश करी एक मॉडल विलेज बनाने की। डेफ़िनेटली उनको शिक्षा का अधिकार है, डेफ़िनेटली उन्हें अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार है, डेफ़िनेटली इन आदिवासियों को या रिमोट एरिया में रहने वाले लोगों को वो सारे अधिकार आवश्यक हैं जो एक अच्छे इंसान को अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। लेकिन उन पर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही विकास आना चाहिए उनके लिए, उनको जितनी ज़रूरत है उतनी ही। यदि हम इस तरह के जगहों पे कुछ ऐसा विकास ले आएँ जैसा कि मैंने बहुत अपने रिमोट एरियाज़ में देखे हैं, जो कतई मतलब वहाँ पर आवश्यकता नहीं थी, वहाँ पर जाकर डिग्रेडेशन शुरू होता है, वहाँ जाकर शुरू होती है असली असली चैलेंज और वो कवायद जहाँ पर इनको बचाने की ज़रूरत होती है इस तरह के चीज़ों को। तो मैं हमेशा पैरवी करता हूँ कि डेवलपमेंट डेफ़िनिटली होना चाहिए, लेकिन अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे टीचर्स मिले। ऐसा क्यों होता है कि एक ऐसे रिमोट एरिया में किसी एक टीचर का ट्रांसफ़र होता है तो वो जॉइन नहीं करना चाहता वहाँ। किसी एक अधिकारी का ट्रांसफ़र होता है वहाँ तो जॉइन नहीं करना चाहता। उसे पनिशमेंट कहा जाता है, उसे काला पानी कहा जाता है। क्यों? क्यों अधिकार नहीं है इन लोगों को कि अच्छे अधिकारी वहाँ पर जाएँ? क्यों अधिकार नहीं है इन्हें अच्छी शिक्षा उन्हें मिले? तो ये ज़रूरी है। अब आप ऐसे लोगों को सज़ा के रूप में भेजेंगे और वो आदमी सज़ा मान के जाएगा, 5 दिन हफ़्ते में स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं, 2 दिन जा रहे हैं, अटेंडेंस लगा रहे हैं, निकल के आ रहे हैं वहाँ से। तो वहाँ पर वो हम दिखता है बाहरी तौर से कि विकास हो रहा है या इस तरह का हो रहा है। लेकिन जो डिप्लीशन हो रहा है, सोशल डिप्लीशन हो रहा है वहाँ पर कैरेक्टर का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको बचाना और कैरेक्टर क्राइसिस का दौर है हम इस समय जिस दौर में हम जी रहे हैं यहाँ पर यूथ के अंदर सबसे बड़ा क्राइसिस है कैरेक्टर का। और कोई यूथ अब सिर्फ़ हम शहरी लोग जाते हैं गाँव में पिकनिक मनाने के लिए, प्लेज़र ट्रिप के लिए जाते हैं गाँव में, वो नहीं होना चाहिए। राइट। हमें हमें पौधारोपण नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए उन पौधों को बचाने की कवायद जो अभी खड़े हुए हैं, जिनमें बच्चे देने की या उनको बीज निकालने की क्षमता है, उनको बचाना चाहिए। पौधरोपण तो होते रहेंगे, एक पौधे को बचा लिया जाए, एक वृक्ष को बचा लिया जाए, तो वो अपनी 50 संतति पैदा कर सकता है, उसके अंदर इतनी ताकत है। हमें छेड़ना नहीं है उनको, रहने दीजिए, इंटैक्ट रहने दीजिए। इको म्यूज़ियम की ज़रूरत है, हमें इको टूरिज़्म की ज़रूरत नहीं। क्या बात है। दीपक आचार्य साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि शिक्षा का भी विकास हो, आवागमन के साधन भी हो। आपने भी आपकी जीवनी में भी मैंने देखा कि आप भी गाँव से आए हैं और गाँव के जी। स्कूलों में पढ़ के बाद में आपने इतनी सारी डिग्रीज ली और मैं अभी पढ़ रहा था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जो एशिया का है उसमें आप पहले भारतीय हैं जिनका कवर स्टोरी पे छपा था पहली बार। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चीजें हुई, विकास का दौर आया, शहरों का कुछ ना कुछ अंश तो गाँवों में भी पहुंचा है। हीरालाल साहब से मैं ये जवाब जानना चाहूंगा क्योंकि आप भी सर, मैंने पढ़ा कि आप एक बस्ती के बहुत ही छोटे गांव में आपका जन्म हुआ था, जहां से आपने बहुत ही रिमोट रूरल विलेज में आपकी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई।
उसके बावजूद आप इतनी सीनियर पोजीशन पे गए, आपने बीटेक किया, एमटेक किया, पीएचडी की, और विदेशों में भी रह के आए, विदेशों में भी पढ़ाई की। तो अभी का जो दौर है, आपका मॉडल विलेज कहीं इसलिए भी ये जरूरत महसूस करते हैं कि शायद वो जो सुविधाएं वो जो जितना कर पाते थे बच्चे अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा विकास पहुंचा है तब भी। आप तो अगर हम इनकी बात करें अपने डॉक्टर दीपक आचार्य जी की, तो ये बात कर रहे थे कि गांव में अभी विकास नहीं पहुंचा है, या आप जो कर रहे थे कि गांव में अभी विकास नहीं पहुंचा है। लेकिन जो विकास कुछ भी पहुंचा है, तो पहले तो और भी नहीं था, उस टाइम पे भी हम सब लोग गांव से ही होके आए, हम भी अपनी बात करें तो हम लोग भी सब गांव से ही आए। तो आज क्या अभी बच्चे नहीं हो सकते? हमें मॉडल विलेज की क्या जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि हम लोग शहर की बात कर रहे हैं, भाई आप शहर पे बात करिए। तो शहर बना कैसे? शहर में लोग कहाँ से आए? देहात से आए। और आज शहर को खिला कौन रहा है और जिंदा कौन रख रहा है? गांव। शहर को दूध सप्लाई, शहर को सब्जी सप्लाई, शहर को फूडिंग मटेरियल सप्लाई, और शहर को इन्वायरमेंट सप्लाई। जो ऑक्सीजन भी जरूरत है शहर में, पौधे बहुत कम होते हैं शहर में, तो वो भी अगल बगल जो मतलब शहर के सराउंडिंग एरिया है, वहीं से सब्जी आती है, वहीं से दूध आता है। तो शहर में रहने वाले लोग आए कहाँ से? देहात से आए। और शहर में जो लोग रह रहे हैं उनको हवा, खाना, पानी सब कुछ सराउंडिंग का जो देहात है, गांव है, वो सप्लाई कर रहा है। तो अगर हम लोग गांव की चीजों को दुरुस्त नहीं रखेंगे, तो जो व्यक्ति गांव से शहर में आएगा, अगर उसकी गंदी आदत गांव में है तो वही शहर में ही हो। अगर वो गांव में भी खाना पीना खा करके रोड पे फेंक देता है, डस्टबिन में नहीं डालता, जब वो शहर में माइग्रेट करेगा तो वहां भी वही गंदगी करेगा। तो देखिए, मेरा ये मानना है, अगर आप शहर वर्सेस देहात बात करें तो हमें देहात पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि देहात केवल अपने आप को नहीं, देहात शहर का फाउंडेशन है। विलेज इज फाउंडेशन ऑफ द सिटी है। और विकास में जो वर्तमान में जो विकास की बात है या विकास का जो तरीका है, उसको बदलने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आज के डेट में गांव में जब विकास की बात होती है तो हर आदमी चाहता है कि उसे कुछ ना करना पड़े, सब कुछ सरकार कर दे। घर बनाना है तो सरकार कर दे, बच्चों को पढ़वाना है तो सरकार कर दे। और पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जमाने में सब चीज पब्लिक पार्टिसिपेशन से होता था। आज गांव में जो इतने भी पुराने तालाब हैं, कुएं हैं, या नदी, या जो भी वाटर बॉडीज हैं, आप उनका अध्ययन कर लीजिए, सब गांव के लोगों ने मिलकर बनाया। उस समय सरकार के पैसे से कोई ना तालाब खुदा, ना कुआं तालाब बना। आज स्थिति ये आ गई है कि उन कुआं तालाब को हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तालाब पट गया, अगर उसकी डिसिल्टिंग करनी है तो सरकार कर दे, कुएं की सफाई करनी है तो सरकार कर दे। देखिए, ये जो ट्रेंड बना, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन गायब हुआ और हम सब लोग मेंटली और फिजिकली सरकार पे डिपेंडेंट हो गए, ये बदलने की जरूरत है। कैसे हुआ सर? ये कैसे हुआ, आपको क्या लगता है? देखिए, ये चीजें धीरे, देखिए आप एक चीज मान लीजिए, दुनिया में एक ही चीज कांस्टेंट है, वो है परिवर्तन। क्या? चेंज इज कांस्टेंट। ये कहते हैं ना, साइकिल हुआ। अब आपको मैं गोबर की खाद की खेती पे उदाहरण देता हूँ। पहले जमाने में हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज करते थे, गांव के घूरे से, गोबर से ही खेती करते थे। धीरे धीरे एक ऐसी जरूरत आई, जनसंख्या बढ़ी और अनाज को ज्यादा पैदा करना था, उस नीड को पूरा करने के लिए हम लोग केमिकल की तरफ बढ़े। जब हम केमिकल की तरफ बढ़े, देखिए खाद से किधर आए? केमिकल की तरफ आए। तो हमारा जल, जंगल, जमीन तीनों बर्बाद हो गया। हमारी जमीन बर्बाद हो गई, हमारे जंगल बर्बाद हो गए, और जमीन, जल, जंगल, जमीन, ये जो है ये तीनों बर्बाद हुए। तो अब फिर हम वहीं जा रहे हैं। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो गई। अब वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जिसमें पोटेंशियल पहले नहीं था कि वो प्रोडक्शन को स्केल अप कर दे, अब उसमें टेक्नोलॉजी और साइंस को गोबर खाद में इनबिल्ट कर दिया गया। अब जब इनबिल्ट कर दिया गया तो जो उसका पोटेंशियल या जो पहले कमी थी, वो कमी दूर हो गई। अब
ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी हम लोग पैदावार बढ़ा लेंगे और जो डिमांड है वो मेट हो जाएगी, हमारी समस्या दूर हो जाएगी। तो देखिए, अब अगर आप ये कहेंगे क्यों ऐसा हुआ, ये चेंज इज कंटिन्यू, कहते हैं ना, ये सर्किल, ऐसा सर्किल में ही हम लोग घूमते हैं। गोबर से केमिकल, केमिकल से गोबर, फिर एक केमिकल की तरफ आएगा, कोई न कोई ऐसा कारण बनेगा। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि गांव का विकास होना चाहिए और गांव की जो अपनी ताकत है उसको रहना चाहिए। बट ये जो वर्तमान में हो गया है, पब्लिक पार्टिसिपेशन गायब हो गया, एक दूसरे की शहर कल्चर आ गया। शहर में अगल बगल में एक ही गली में 2 दरवाजे खुलते हैं, अगल बगल में रहते नहीं जानता। यही बात धीरे धीरे शहरों में भी आ रही। तो वो जो अभी आप दीपक जी बता रहे थे ना कि हमारा कल्चर गायब हो गया है। पहले हम लोग शादी वादी में गांव कोई शादी होती थी, हर चीज गांव वाले कंट्रीब्यूट करके करते थे। नाच गाना, कल्चरल एक्टिविटी क्या होता था, गांव के लोग ही नाच गाना, सोहर और सब शादी में गाते थे। तो उससे गांव की एक ताकत बनती थी, गांव का कोहेशन बढ़ता था। अब गांव में भी वही टेंट कल्चर आ गया, वही बफेलो सिस्टम आ गया, वही बफे सिस्टम जिसको कहते हैं वो आ गया, और भाईचारा वहां भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जब भाईचारा खत्म हो रहा है, इसका मतलब हमारा ताकत खत्म हो रही है। तो जब ताकत खत्म हो रही है तो हम ताकतवर नहीं रहे, तो ये बात तो अच्छी नहीं है। ताकत तो गांव की बड़ी जरूरी है। तो कुल मिलाकर के जो ये इसका तरीका है, हमारा जो प्रोसेस है, उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। सबके मेहनत का कन्वर्जेंस हो, सबके इफर्ट का कन्वर्जेंस हो, सबका पार्टिसिपेशन हो। और जब सबका जैसे तालाब सभी लोग जब मिलके खोदते हैं या उसको बनाते हैं, तो सबको लगता है ये मेरा तालाब है और ये ठीक रहना चाहिए, इसमें इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वही तालाब सरकार बना देती है तो सब लोग सोचते हैं तो सरकार की है, ऐसे उसके बारे में केयर नहीं करता। और जब उसके बारे में केयर नहीं करेगा तो पानी कहाँ मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि, और कोविड ने गांव को और फोकस में ला दिया। हम उसी पे आने वाले हैं सर। हाँ, कोविड ने ये प्रूव कर दिया कि शहर की तुलना में गांव ज्यादा मजबूत है। लोग लौट के गांव आए, शहर सस्टेन नहीं कर पाया। जब कोविड आया, लोग अपने गांव में आए, अपने परिवार में आए, और बुरे दिनों में, आफत के दिनों में गांव ने साथ दिया। तो गांव को लेकर के, और ये सही बात है और इसमें कोई दो राय नहीं, कि वर्तमान में जो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और भारत सरकार है, उनका फोकस गांव है, ये मानना पड़ेगा। और गांव पर वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जो कि देना चाहिए था। तो ये भी एक अच्छा कदम है और ये एक अच्छा संकेत भी है। इसी दिशा में बहुत सारे प्रोग्राम बन रहे हैं, जैसे ये पीसी का प्रोग्राम है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का, वो इसी दिशा में है कि हर गांव में भी कंपनी हो जाए, वो गांव ताकतवर हो जाए। तो दीपक जी, कोविड की बात आई और हम बिल्कुल उसी पे आ रहे थे बहुत जल्दी में। आपके बारे में जितना हम जानते हैं, आपके लिए एक मुझे 2 लाइनें मिली, मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम आपसे जवाब पूछता हूँ। आप हमेशा ये कहते हैं, जो गांव का मजा शहर में ढूंढते हैं, वो जीने का मजा जहर में ढूंढते हैं। तो अगर आप गांव में जो आप मजा मिल रहा है, जो मजा मिलेगा, अगर उसको शहर में ढूंढने की कोशिश करो तो ऐसे हुआ जैसे आप जहर में मजा ढूंढ रहे हैं। तो ये जो गांव की जो कल्चर है, आपसे एक दिन मैं बात कर रहा था और आप बोलने लगे कि मुझे ऐसा लगता है कि शहर का सब अपना उठा के सामान बिस्तर और हम गांव में चले जाएं और वहां भी अपना एक कहीं बड़ा सा जगह बनाएं और उसमें हम कुछ अपनी हर्बल और जो भी समाज के लिए कर सकते हैं करें। तो एक गांव का बच्चा, जब वो छोटा बच्चा रहता है, हम सब छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारे अंदर एक सपना होता है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम बड़े होंगे। वही आप बात कर रहे थे कि हमें दिखाना होता है कई बार गांव के बच्चों को, क्योंकि उनको कम करके लोग आंकते हैं कि गांव के बच्चे शायद बड़ा काम ना कर पाए। हीरालाल साहब के लिए भी, हमारे लिए भी, आपके लिए, हम सब के लिए, हम सब लोग गांव से हैं। हम सब लोग ये सपना लेके आए कि हमें कुछ प्रूव करना है कि हम जाके देखिए हम कम नहीं है, हम ये कर सकते हैं और वो कर सकते हैं। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद आने लगता है, जैसा आपके जीवन में आया, सब करीब करीब एक उम्र के बाद आप ऐसा सोचने लगे, नहीं, मुझे जो दिखाना था मैंने दिखा दिया। कि गांव से आया, शहर में आया, वहां हमने बड़े काम किए, बड़ा नाम किया, अपने शहर में, अपने देश में, अपने राज्य में और विदेशों में भी। अब मुझे वहीं जाना है जहां से हम आए थे,
क्योंकि वो मेरा एक परमानेंट और सेफर रिफ्यूज है। हमारी शरण बहुत सेफ है, मतलब वो बहुत सेफ है, सुरक्षित है, और हम अपने आप को ज्यादा वहां पे कर पाएंगे। तो आप इसमें क्यों इतना ज्यादा विश्वास करते हो? क्योंकि ये रिवर्स माइग्रेशन जिसको बोलते हैं हम, रिवर्स माइग्रेशन अगर होने लगा तो क्या स्थिति होगी फिर? स्थिति मुझे लगता है जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, और उसकी तबीयत जब खराब होती है, तो दवा बच्चे को नहीं दी जाती, माँ को दी जाती है, क्योंकि बच्चा माँ के गर्भ में, यानी उसकी जड़ पे इलाज होता है, उसके रूट पे उसका, यदि बच्चे को टारगेट करके देंगे या बच्चे पे कहीं कोशिश करी जाएगी, तो वो बच्चे की सेहत के लिए घातक होगा। तो इलाज की जड़ों में पहुंचना है, जब आपको चीज़ों को सुधारना है, तो उसके रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। और रूट कॉज क्या है कि हम जिस जगह को हमने बिगाड़ दिए हैं, या जो जगहें जिनको हम वहाँ से निकल के बाहर आए। मैं आप जो अभी कह रहे थे कि हम गाँव से चलकर शहर तक आए, अब मैंने पीएचडी की, पोस्ट डॉक्टरेट करी, दिल्ली चला गया, वहाँ से पोस्ट डॉक्टरेट करी मैंने। अब मैं वहाँ जाकर शहर में जाकर कुछ करूँ, नहीं करूँ, ये वापस गाँव चले जाऊँ, एक सीमा पे जब मेरे पास कुछ नहीं है, तो शायद मैं बच्चों को या गाँव के लोगों को वो मैसेज ना दे पाऊँ कि इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद में कुछ नहीं, खलिहर हो गए, हम वापस आ गए, घर के अंदर बैठे। तो आपको एक एग्ज़ाम्पल सेट करनी पड़ती है। उनको बताइए जाके कि मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, आप भी पहुँच सकते हैं, लेकिन मैं अपनी जड़ों को नहीं भूला हूँ, क्योंकि मुझे जड़ों को हील करना है। उस जगह को यदि मैं सोचता हूँ वापसी करूँ वहाँ जाने की, तो वापसी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कोरोना आ गया या कुछ ऐसा हो गया या बहुत अचीव कर लिए, ठीक है। लेकिन मैं वापसी करने का सोचता हूँ मुझे कि मैं उस जनरेशन का इंसान हूँ जिसने वो एक ट्रांजिशन फेज़ देखा है, कि हम उस दौर में भी अंतर्देशीय पत्र और हमने पोस्ट कार्ड भी देखे, हमने पेजर भी देखा, हमने मोबाइल भी देखा, हमने एसएमएस भी देखा, व्हाट्सएप भी देखा, टेलीग्राम, तमाम चीज़ें देख ली हमने। तो वो दौर के ट्रांजिशन को देखने के बाद में हम क्या आता है हासिल, क्या होता है इस समय, जब आप देखते हैं कि वो जो एक चिट्ठी जो मेरी माँ अपनी माँ को लिखा करती थी आंध्र प्रदेश में, वो चिट्ठी 10 दिन बाद मिलती थी वहाँ जाकर। उसका जवाब आता था, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, वो 10 दिन बाद यहाँ जवाब मिलता था। तो इस तरह का एक स्वीट एक कम्युनिकेशन चार्म होता था उसका। मैं यहाँ उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको कि कभी-कभी पिछड़ेपन में भी एक स्वाद होता है, एक अपना मज़ा होता है। और हमने जो भाग-दौड़ में, जो रफ्तार के चक्कर में आके जो विनाश किया है अपने, यदि गाँव से सारे लोग, जैसा हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन की समस्या करती हैं, कि हिंदुस्तान का हर समझदार, हर पढ़ा-लिखा लड़का पीएचडी करने के बाद में सीधे अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, तो फिर देश में रहेगा कौन? तो हमें गार्बेज इकट्ठा करने का शौक है, या हमें आप ही इसको नर्चर करने की ज़रूरत है हमें। तो हम जैसे लोग जो पढ़े-लिखे हैं, हमने देख चुके हैं। अब मैं आज की स्थिति में, मैंने यदि 20 साल मैंने गाँव में दिए हैं, तो 20 साल मैंने शहर में भी दिए हैं। तो मैं इस उस स्टेज में हूँ जहाँ पर मैं बराबर मेज़र कर सकता हूँ कि अब मुझे शहर से क्या चीज़ों को गाँव तक पहुँचानी चाहिए, और गाँव की किन चीज़ों को शहर तक आना चाहिए, और किस स्थिति में आनी चाहिए, ताकि वो इक्विलिब्रियम जिसको बोलते हैं, जो एक समानता या दोनों के बीच में बैलेंस है, उसको बनाया जा सके, दीपक साहब, एक मैं उनको छोटी सी इंटरैक्ट बात करके ऐड करता बताया। हूँ इसी में। एक्चुअली मैं जब बहुत छोटा बच्चा था तो मेरे मन में ऐसी ही बातें होती थी कि नहीं मैं शहर जाऊंगा, और मदर को बोलता था कि नहीं मैं तो यहाँ वापस नहीं आऊंगा। तो मेरी मदर बहुत गुस्से में बोला करती थी, मतलब थोड़ा मुझे डांटते हुए कि बेटा चाहे वो उनकी कहावत थी, वो बहुत मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनको यही बोलती थी कि चाहे चिड़िया जितना उड़े आकाशा, चारा है धरती के पासा। वो मतलब अपनी गाँव की भाषा मुझे ये कहावत ज़रूर सुनाती रहती थी कि तुम कितना ही बाहर जाओ, कहीं भी रहो, कैसे, लेकिन तुम एक दिन यहीं लौट के आने वाले हो। तो ये करेक्ट। जो बात आपने बताई, ये क्या जो लोग वहाँ पे उन जड़ों से आए हैं, आज के कोविड के टाइम पे अगर हम बात करें, तो वो जगह क्या ज़्यादा सेफ भी है हमारे लिए? वातावरण की जो अब जो ये हम बात कर रहे थे, इसका प्रेशर क्या कोविड की वजह से भी हम लोगों के दिमागों पे पड़ रहा है कि शायद वो जगहें ज़्यादा सुरक्षित हैं हमारे लिए, और हमें ज़्यादा सामाजिक और इमोशनल सपोर्ट मिलेगा? ये असर भी आ रहा है इस सोच? यदि गाँव का रहन-सहन आप देखेंगे, तो घरों की बनावट देखिए आप, तो एरेशन होता है प्रॉपरली, डिस्टेंस होते हैं घरों के बीच में, दूरियाँ होती हैं, घर जो होते हैं दूर-दूर पे होते हैं, लोगों का उस तरह का रहन-सहन नहीं होता जिस तरह के कबूतरखानों में आप और हम रहते हैं। मैं तो जिस जगह पे रहता हूँ 10 माले की बिल्डिंग है, और 1 फ्लोर पे मैं रहता हूँ, जैसा आपने कहा था कि हम बाजू वाले पड़ोसी को भी नहीं जानते शहरों के अंदर में। और यहाँ पर वो स्पेस नहीं होता, वो फ्रीडम नहीं होता, और बहुत छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं।
जिनको हम देखे हैं उस दौर से, वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं अपने गांव देहात का एक्सपीरियंस आपको बताऊं, और कोविड की बात चल रही थी इसलिए बताना चाहूंगा खास तौर पे। ये जो ये जो लॉकडाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको आप बहुत नया मत समझिएगा। ये आइसोलेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल नया मत समझिएगा कि हमने पहली पहली बार सुना कि आइसोलेट करना पड़ता है या लॉकडाउन होना पड़ता है। गांव में सदियों से चले आ रही लॉकडाउन की परंपरा। और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, मुर्गियों में जो जीवने की जो समस्या होती है, मुर्गियों में कई बार रोग आ जाते हैं, फ्लू जैसे कोई प्रॉब्लम दिखती हैं, तो ग्रुप के अंदर में जो मुर्गियां होती हैं उनमें से जिसमें रोग दिखता है उसको उठा के किनारे रख दिया जाता है और उसको टोकरी से ढक के रखते हैं। ये कोशिश करी जाती है कि वो बाकी मुर्गियों से मिल ना पाए ज्यादा पास में आके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये कंटेजियस रोग है, फैल सकता है एक दूसरे से। छोटी छोटी बारीक चीजें हैं। जब गांव में कुछ किसी तरह की महामारी फैलती है, किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो सब लोग ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा दूर दूर रहें। उन्हें किसी ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, किसी ने कोई माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ाई उन लोगों को। वो वही सब चीजें जो दादी नानी की चीजें होती है, जो पारंपरिक नुस्खे हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। वही काढ़े और वही सब चीजें बहुत पहले से लिया करते हैं, जिसके बारे में आयुष ने भी कहा है। तो बहुत सारी सीख ऐसी है। और कोरोना के दौर में भी ये कहूंगा मैं खुद इस बीच में 2 महीना मैं अपने होम टाउन में रह के आया, जब ये कोविड का फेज चल रहा था। और बीच में तो लॉकडाउन के फेज में भी मैं चुपचाप छुपते छुपते गांव तक तो पहुंच ही गया था मैं। लेकिन मुझे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इस बारे में, कि एक तो जो अननेसेसरी फियर वो नहीं होता है। बार बार जो पैनिक होता है, खबरों का जो पैनिक होता है, न्यूज का जो पैनिक होता है, जो उससे भी वो बहुत दूर अलग हैं। उनका गांव का अपना डिसीजन होता है, गांव के लोग अपना तय करते हैं। और किसी गांव के बुजुर्ग ने या पंचायत ने कह दिया है कि हमारे गांव में बाहर का कोई नहीं आना है, तो पूरा गांव एक हो जाता है इस मामले में, कि वो चकाबंद हो जाता है इस चीज को देखने के लिए कि गांव के अंदर कोई बाहर का इंसान आ तो नहीं रहा है। तो कई मायनों में बहुत सारी चीजें, और क्योंकि आप नेचर के एम्बियंस में होते हैं, खुली हवाएं हैं, खेत है, खलिहान है। और लॉकडाउन से मतलब वहां का ऐसा नहीं होता है कि आप घर के अंदर कैद हो गए। लोग निकल जाएंगे, अपने खेत की तरफ चले जाएंगे, खलिहान में काम करते रहेंगे, कोई बाड़े पे चले जाएगा, कहीं कुछ चल जाएगा। तो वो आजादी है घूमने फिरने की। और चूंकि बैकयार्ड फार्मिंग करते हैं, तो उन्हें वो भी टेंशन नहीं है कि हम कल क्या खाने वाले हैं। कुछ ना कुछ सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा सुकून और शांति है उन जगहों पे। और ये बहुत जरूरी है कि कुछ बेसिक्स, चूंकि अब इतना दौर चल रहा है, कठिन समय चल रहा है, पर मुझे उम्मीद गाँव से दिखती है हमेशा, हर मामलों में गाँव से बहुत सारी उम्मीदें हैं। और गाँव को ही गाँव के स्वरूप में बचाए रखना बहुत जरूरी है। ये मेरा हम आगे आगे अगले राउंड में आपसे ये बात करेंगे कि गांव का जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसपे आपने बहुत काम किया है, जो जो एक्सपीरियंसेस के थ्रू टेस्टेड एंड ट्राइड मेथड्स हैं हील करने के, उसको आप कैसे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और उसको हमें कैसे बचाने की जरूरत है। इसके पहले हीरालाल साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो आपका मॉडल विलेज है, बहुत नया कॉन्सेप्ट आपने आपने बताया, मैंने आपके वीडियोज भी देखे बहुत सारे, कि आपके अंदर ये आइडिया कैसे आया और आपने कैसे डेवलप किया। अब हम उसमें नहीं जाएंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जो आगे का है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है करीब करीब काफी लोगों तक पहुंच गया है। आपने जिस तरह से इसको पहुंचाया है लोगों तक, कार्यक्रमों के माध्यम से, इंटरव्यूज के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से, और जिस तरह से आपने इसको बहुत ही पैशनेटली किया है, तो अभी जो छोटी मोटी समस्याएं थी गांव की, जो लोग समझने लगे हैं कि देखिए सब कुछ हमारे पास है। आप जो बता रहे हैं बहुत बढ़िया बात बताया। आपकी ये बात मुझे इतना ज्यादा जमती है कि देखिए हम तो एक माहौल बनाने की कोशिश करें। इसका एक फेज है माहौल बनाना। लोगों को समझ में आए कि देखिए गांव आपका मॉडल बन जाएगा, सब कुछ आपके पास है। आपको चेंज मेकर ढूंढना है, आपको एक लीडर ढूंढना है, आपको अपने गांव की समस्याओं को ढूंढना है, आपके गांव में जो एक जो सामाजिक समरस है, सामाजिक समरसता को भी देखना है। बस इन चीजों को देख लीजिए, अपना मैनिफेस्टो बना लीजिए। कोई भी समस्या है तो आप हमारे पास आ जाइए, या किसी और जो अथॉरिटीज उनके पास जाइए, आपकी उन समस्याओं का हल मिल जाएगा और आपका गांव मॉडल गांव बन जाएगा। मॉडल गांव बनने की ये आपने फॉर्मूला दे दिया है लोगों को। तो ये फॉर्मूला इतना बढ़िया लोगों तक पहुंच रहा है। अभी आपको आप करीब करीब मुझे ऐसा लगता है कि सारे इंडिया में ये बातें पहुंचने लगी हैं मॉडल गांव की। तो आपका फोकस एरिया उत्तर प्रदेश है या और कहीं भी इस पे काम कर रहे हैं सर, और कहाँ तक पहुंचेंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है, ये जिले का टेस्टेड और ट्राइड मॉडल है, और उसी को हम लोग रिप्लिकेट कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में हमने इसको टेस्ट किया है, उसी का ये रिप्लिकेशन है। तो नेचुरल सी बात है कि यूपी हमारा फोकस एरिया है। लेकिन हम आइडिया सेलिंग कर रहे हैं।
तो जो आइडिया सेलिंग कर रहे हैं वो भी थ्रू टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आज के डेट में जब ऑनलाइन आप कोई आइडिया सेल करते हैं तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है। ये पूरे देश में विदेश में कोई भी उस आइडिया को पढ़ सकता है, कोई भी हमसे जुड़ सकता है, कोई हैंड होल्डिंग कर सकता है, और ये हो भी रहा है। ये आइडिया देखिए, बात क्या है कि हम लोग विगत जब से हमारा देश आजाद हुआ, हमारा जो भागने की दिशा है, वो माइग्रेशन का जो दिशा है वो गांव से शहर की तरफ है। इससे नुकसान ये हुआ कि हमारा जो शहर है वो ओवरलोडेड हो गया। तो जो शहर ओवरलोडेड हो गया तो जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो भी मजा नहीं ले पाए। और दूसरा ये है कि जो हमारा बेसिक यूनिट गांव था, उधर से लोगों का फोकस हट गया। तो ना हम ये कहेंगे ना हम घर के रहे ना घाट के रहे। गांव से फोकस हटा तो गांव अनइम्पोर्टेंट हो गया, और उधर जब हम शहर में आए तो शहर में ओवरलोडिंग हो गई। एक आदमी के रहने की जगह है और 10 आदमी रह रहे हैं। तो बेसिक बात यह है कि इंडिया लिव्स इन द विलेजेस, और हमें ये फोकस चेंज करना है। हमें लोगों का, हर व्यक्ति का फोकस शहर से गांव की तरफ ले जाना है। और अगर हम गांव की तरफ फोकस ले जा रहे हैं कि भाई गांव का विकास होना चाहिए, तो हम केवल समस्या बताने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। हमें समस्या भी बताना है तो उसका समाधान भी बताना है। तो जब हम बताते हैं कि नहीं, गांव किसी मामले में कम नहीं है, गांव ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू विलेज। आप वहां शुद्ध हवा अच्छी मिलती है। शहर में आपको हर चीज, मैक्सिमम चीज मिलावटी मिलेगी, और देहात में कोई चीज मिलावटी मिलेगी ही नहीं। गांव का पोल्यूशन लेवल बहुत, शहर का पोल्यूशन लेवल, हवा जो हम लेते हैं खराब है, शहर में शुद्ध वातावरण है। शहर का पानी गड़बड़ है, हमारा पानी अच्छा है। तो ऑलरेडी हमारे पास अच्छी चीजें जीने के लिए देहात में हैं, लेकिन कुछ ऐसा माहौल बन गया है, माइंडसेट बन गया है। तो हमें फोकस ले जाना है गांव की तरफ, और गांव की जो अच्छी चीजें हैं वो बताना है एक बात, और जो चीजें नहीं है या हमारे बीच थी, गायब हो गई हैं, उसको री-इस्टेब्लिश करना है। पब्लिक पार्टी अभी जो शहर में आ गए हैं सब लोग, उनके विकास के मुद्दे गांव में लोगों को नहीं पता है, उसको लाना है। वही बात मैं कर रहा था। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, लोग बाग, अभी गांव के लोग ऐसे बोलने लगे, बेटा अब तो गांव आ जा, सड़क पक्की बन गई है। पहले हम लोग शहरों में इसलिए गांव में नहीं जाते थे कि वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं। तो ये जो एक प्रचार तंत्र है, जो प्रचार प्रसार है, वो भी मुझे लगता है ज्यादा करने की जरूरत है। तो बैलेंस भी बनेगा। जो आपने बताया कि शहर का इंफ्रा ओवरलोडेड होता जा रहा है, और गांव में बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे ही पड़ी हैं, स्वस्थ चीजें पड़ी हैं, वो बातें एक बार शहर में लोगों तक पहुंचाई जाएं तो थोड़ा सा बैलेंस बनेगा। दीपक साहब, ये बात हम कर रहे थे कि जो अभी जो कोरोना ने, जो कोविड-19 ने सबसे ज्यादा फोकस में, जो हिराल साहब ये भी बता रहे थे कि गांवों को लाया है, और ज्यादातर इसको ठीक करने में अभी वैक्सीनेशन तो आया और मेडिकल ट्रीटमेंट हो ही रहा है एज इट इज, लेकिन ज्यादातर जो लोग ठीक हुए हैं वो हर्बल ट्रीटमेंट है या जो देशी नुस्खे हैं जिनको आप हमेशा बताते रहते हैं, उससे हुए हैं। तो ये जो नुस्खे हैं, आपसे ही मैंने कई बार सुना, आपने कई बार बताया कि ये गायब होते जा रहे हैं। जैसे गांव का बंदा जब शहर में आ जाता है तो गांव की सड़क तक भूल जाता है, तो वो नुस्खे कहाँ से याद रखेगा। मुझे याद है कि मैं जब पढ़ता था बचपन में 7-8 में, तो मुझे वो अपने छप्पर की वो दिखती थी लाइट, हाँ इतने उतने पे आ जाती थी, तो मुझे लगता था 9 बजने वाला है, चलो भागो। 4 किलोमीटर पैदल दौड़ के जाना रहता था, तो घड़ी वड़ी का चक्कर ही नहीं रहता था। लेकिन अभी वो सब भूलते जा रहे हैं। जैसे आप शहरों में आ जाते हो तो उन चीजों को भूल जाते हो। तो वो जो छप्पर को देख के, सूरज इतने पे आएगा तो इतने पे लाइट आएगी, ये जो ज्ञान है, या फिर अगर आपके ये बीमारी हो गई तो ये पी लो, इसको प्रिजर्व करना, आगे वाली जनरेशन तक पहुंचाना, कल्चर को आगे तक पहुंचाना, ये आप इसमें काम कर रहे हैं। और इसमें और कितना काम करने की जरूरत है और कितना हो रहा है? तो ये बहुत 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 बड़ा फील्ड है, और मैंने जो काम किया बहुत 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 थोड़ा सा किया है। मतलब
मैंने सिर्फ 3 रिमोट एरियाज़ को डॉक्यूमेंट किए। आप सोचिए हर घर में आपकी नानी, दादी, काका, बाबा सब लोग के पास कुछ ना कुछ एक ज्ञान है जो पारंपरिक ज्ञान मुझे उनके लगता है पास सर, चला आ रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे लगता है सर मॉडल गांव में आप इसको भी एक ऐड करवाइए हीरालाल साहब। ये जो उनका ट्रेडिशनल, हर गांव का एक ट्रेडिशनल ज्ञान है, वो लोग बता देंगे तो कि अच्छा तुमको बिल्कुल, बिच्छू मार दिया है, बिच्छू काट दिया है, आप ये नींबू रगड़ दो, तुम्हारे बिच्छू या बिल सांप काट लिया है, ठीक हो जाएगा। तो ये ज्ञान गायब ना हो जाए, और सही में ठीक हो जाता था। और मैंने तो ये गांव में जी जी, जी बताइए ये प्लीज। आप इसलिए मैं इस ज्ञान की पैरवी करता हूँ क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी, मॉडर्न साइंस पढ़ा, फिर ये ट्रेडिशनल नॉलेज भी पढ़ना शुरू कर दिया। तो मैंने हमेशा साइंस की नज़रों से देखा और बहुत सस्पिशन की नज़रों से देखा कि ये सब झोला छाप तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। डेफ़िनेटली बहुत सारी जानकारियाँ बकवास भी होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे इलाकों में मुझे ऐसे धुरंधर हीलर्स मिल जाते हैं, हर्बल हीलर्स मिल जाते हैं जिनका ज्ञान मतलब एट पार है। और ये ज्ञान इतना चैलेंजिंग है इसको डॉक्यूमेंट करना, क्योंकि जो जानकार लोग हैं वो अभी भी 80 और 90 साल की उम्र की उस दायरे में जी रहे हैं या हैं। अब इनको हम डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं, अब किसी वजह से दुर्घटना की वजह से यदि उनकी जान चली जाती है, उनकी मृत्यु होती है, तो आप समझ रहे हैं, ना सिर्फ उस व्यक्ति का मतलब उसके परिवार का बल्कि पूरे समाज का और पूरे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि मैंने ऐसे-ऐसे हीलर्स देखे हैं जिसके जिनके फ़ॉर्मूले को, जिनके जिनके दिए हुए ज्ञान के आगे सारा साइंस नतमस्तक हो सकता है, फेल हो सकता है, मैं इतना दावे से कह सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ इस बात को। पचासों चीज़ों को मतलब एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं कि गाँव-गाँव में तांबे के बर्तन इस्तेमाल किए जाते थे। गाँव-गाँव जी में कुंडियाँ जो होती थी, दरवाज़ों की सांकल होती थी, तांबे की होती थी। तांबे के बर्तन होते थे। हर एक चीज़ तांबे पे, इवन बेड पे भी जो प्लेटिंग होगी वो तांबे की होगी। किसी ने कभी सोचा होगा कि वो एक तांबा जो है एक माइक्रोब को किल करने में बहुत बड़ा काम करता है। अब जाके आप मॉडर्न हम्म, स्टडी देखते हैं, तो कोरोना के ऊपर में मैंने कम से कम 200 से 250 रिसर्च पेपर देखे हैं, जो कोई एक मेटल है जिस पे बहुत कम सर्वाइव करता है वो तांबा है। अब आप सोचिए उनके डोर पे जिनको पकड़ते हैं बार-बार हाथ, संकल जिसको बार-बार हाथ लगाते हैं, ताले जिनको बार-बार छुआ जाता है, चाबियाँ, सारी चीज़ें तांबे की हुआ करती थी। क्यों? क्या लॉजिक रहा होगा उन लोगों का? कौन-सा उन लोगों ने साइंस पढ़ लिया था उस ज़माने में, क्या कर लिया था? ये पारंपरिक ज्ञान था जिसको टाइमली डॉक्यूमेंट करना चाहिए था। क्यों लोग उपवास करते हैं हिंदुस्तान के अंदर में? गाँव देहातों में क्यों ऐसी पूजाएँ होती हैं, वो एकादशी होती हैं, छठ पूजाएँ होती हैं, अर्घ दिया जाता है सूर्य देवता को। क्यों? इनके पीछे क्या लॉजिक्स रहे होंगे? अब आप देखिए नोबेल अवार्ड जीत रहे हैं लोग उस बात को, वही फंडे को देख के कि आप कैसे लंबे समय तक भूखा रहेंगे, तो आप कैसे ऑटोफैगी होगी, कैसे आपकी वो कोशिकाएँ और वो खाना शुरू करेंगी। क्यों इम्यूनिटी की बात करी जाती है, क्यों एक्स्ट्रा एक बुजुर्ग जानकार से मैं बात कर रहा था, अभी-अभी जब मैं गाँव गया था, तो मैं काढ़े की बात करी कि आपके पास आप लोग काढ़ा वितरित कर रहे हैं गाँव में, लोगों को काढ़ा पिलवाते हैं। तो कितने दिन तक लगातार पीना है इसको या क्या करना है? बोले नहीं 6 दिन 7 दिन से ज़्यादा नहीं पीना है। तो मैंने कहा क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो वो बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि नहीं इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी क्या करोगे? मतलब इतनी ज़्यादा ताकत और इतने ज़्यादा लड़ने की क्या हम्म, ज़रूरत है आपको रोगों से? सफिशिएंट है हम्म, जितनी मिल जाएगी उतनी काफ़ी है। ये उस हम्म, आदिवासी का या उस गाँव वाले का कहना था। अब इसको मैं साइंस की लैंग्वेज में डिकोड करूँ आपको, तो जब शरीर हाँ, में इम्यूनिटी सीमा से ज़्यादा हो जाएगी, तो वो इम्यूनिटी क्यों है? किसी सूक्ष्म जीव को मारने के लिए वो इम्यूनिटी बनी हुई है। लेकिन सीमा से हम्म, ज़्यादा इम्यूनिटी हो जाएगी और वो सूक्ष्म जीव जब नहीं आएगा शरीर में मान लीजिए, तो उसको यूज़ तो हम्म, करना है, तो वो अपने शरीर पे जी आक्रमण करना शुरू करती है। पैंक्रियाज़ पे अटैक करती है, टाइप 1 डायबिटीज़ का प्रॉब्लम बनता है। शहरों में आके देखिए, हम ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो रहे हैं। इस दौर में हमने कितना काढ़ा पिया, कितनी सारी चीज़ें कर ली, कितना गिरोए, कितना त्रिफला, कितना सबको मैं हमेशा समझाते रहा कि एक लिमिट तक लीजिए, इतना डोज़ लीजिए, लेकिन लोग अंधाधुंध कर रहे थे। तो अब आप देखिए हम्म, गाँव की सीख छोटी-सी जिसको शहर में आके आप देखेंगे, इस नॉलेज को हम्म, डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उस हिसाब से डॉक्यूमेंट करना चाहिए, जिसमें आपकी इन डेप्थ इन्वॉल्वमेंट हो। आप ऐसा रैंडमली जाकर किसी से सीख के आ गए, पूछ के आ गए, नहीं, बहुत सारे क्रॉस वेरिफिकेशन चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो 80 से 90 साल के बुजुर्गों को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। क्योंकि हम्म, वो ज्ञान को आपने बचा दिया, उसकी रिपॉज़िटरी तैयार कर ली तो आने वाली पीढ़ियाँ आपको सदियों तक याद रखेंगी। क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न साइंस में 15 इयर्स और कई मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक देख रहे हैं ना हम अभी कितना स्ट्रगल चल रहा है एक वैक्सीन को लेकर। 1 साल में वैक्सीन डेवलप होती है और वैक्सीन के हम्म, ऊपर में बहुत सारे कंसीक्वेंसेस और बहुत सारी बातें हो रही हैं क्योंकि ये जी रिसर्च है जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो एक हम्म, वैक्सीन को एस्टैब्लिश होने में 1 साल 6 महीने नहीं लगते, उसको 8-8 10-10 साल लगने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ हम्म, आपको,
हर 6 महीने में 8 महीने में एक शॉट लेने पड़ेंगे आपको, 1 साल में लेना पड़ेगा वैक्सीन का शॉट, क्योंकि उसकी ड्रग को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये सब चीजें कहाँ से आपको समझ में आएंगी? इस चीजों के बेसिक्स को आप जाएंगे ना जानने के लिए। हमारे पास में इतना बहुत सारा समय नहीं है, लेकिन मैं ऐसी चीजों को जोड़ के बता सकता हूँ तार, जिसमें गांव देहातों से आप सीखेंगे, समझेंगे, तब वो बताएंगे कि धैर्य या पैशंस जिसको कहते हैं, या रिसर्च के नाम पर आराम जिसको कहते हैं, जो बहुत सोच समझ के चीजों को डिसाइड करना और उसके बाद में निर्णय लेना, ये सीखा जाना चाहिए गाँव से। तो हर चीजों में एक वक्त लगता है। यहाँ पे गाँव की हीलिंग मेथड्स को आप देखेंगे तो वो बहुत फेज वाइज हीलिंग करते हैं। ऐसा नहीं है और आपको ये कि इसलिए कोई दीपक साहब, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी भी हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हीरालाल साहब तो नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल डायरेक्टर हैं, इनसे ज्यादा तो हम क्या बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अभी जो कोविड टाइम में आप भी देख रहे हैं हॉस्पिटल्स में क्या स्थिति है, लोगों को जगह नहीं मिल रही। मतलब ये हुआ कि कितना भी कर लें हम, गाँवों में इतना ज्यादा हेल्थ, अभी शहरों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा रेडी नहीं हुआ, तो गाँवों में तो होने वाला नहीं। तो मतलब ये हुआ कि जो गाँव का हमारा हेल्थ की जो ट्रेडिशनल हीलिंग सिस्टम है, उसको तो हमें स्ट्रांग करना ही पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन भी करना पड़ेगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उससे अपने आप उसका लाभ ले सके। क्योंकि अभी मॉडर्न साइंस नहीं पहुंच पाएगी, मुझे नहीं लगता अभी 50 साल तक वहां पहुंच पाएगी इतना जल्दी। क्योंकि अभी आज के डेट में अपने शहरों को देखिए क्या हालत हो रही है। तो सर, आपको क्या लगता है कि इस पे कुछ, आप तो नेशनल हेल्थ मिशन के भी एडिशनल डायरेक्टर हैं, इस विषय में कुछ हो रहा है? नहीं, देखिए हेल्थ में तो पहले केवल एलोपैथी पे ज्यादा जोर हुआ करता था। मैं पुनः इस सरकार ने क्या किया, आयुष मंत्रालय का गठन किया। इसका मतलब ये नहीं वो सारे लोग थे, उसमें ऊर्जा डाली गई, उसमें जान डाला गया। और देखिए योगा क्या है, योगा हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था पहले कि हम बीमार हो ही क्यों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम लोग क्योर पे अपना फोकस ले आए पिछले 5 साल में, जबकि हमारा फोकस क्योर पे होना चाहिए। क्योर का मतलब है कि ऐसा कुछ करो, प्रिवेंशन पे हमारा फोकस होना चाहिए। सॉरी, हमारा फोकस क्योर पे ना होके प्रिवेंशन पे होना चाहिए। प्रिवेंशन का मतलब ये हुआ हम बीमार हो ही क्यों, हमें बीमार नहीं होना चाहिए। तो अगर हम योगा करें, सुबह उठें, खान पीन में अपने को बैलेंस बना के रखें, तो बीमारी होगी ही नहीं। और जब बीमारी नहीं होगी तो हमें ना हॉस्पिटल चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना ये सब चीजों का जो लोचा है या जो कमी की हम बात कर रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं है। तो आप ये देखिए जो योगा को पॉपुलराइज किया गया और सिस्टमेटिक तरीके से किया गया, आयुर्वेद, होम्योपैथ, ये जो हमारे ट्रेडिशनल पद्धति थी, इसको फोकस में लाया गया, इसको बढ़ाया जा रहा है, एक अच्छी शुरुआत है। हम काफी कुछ केवल एलोपैथ पे डिपेंड हो गए थे। आयुष मंत्रालय काफी कुछ प्रिवेंशन की तरफ ध्यान दे रहा है, जिससे कि हम बीमार हो ही क्यों वाला फार्मूला कारगर हो। तो मेरा तो ये मानना है कि हमें फोकस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यस, बेटर देन क्योर में अपना फोकस क्योर से हटा करके प्रिवेंशन पे ले जाना चाहिए, और प्रिवेंशन पे हमें ज्यादा काम करना चाहिए। ये ज्यादा सेंसिबल मुझे लगता है, और इस पर सरकार काफी कुछ काम कर रही है और ये एक अच्छी शुरुआत है। इसमें हम सब लोगों को आगे आना चाहिए। और मैं आपको एक चीज ये भी बता दूं, पहले लोग ऑर्गेनिक फूड को या हर्बल दवाइयों को, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक को पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं था। लेकिन अब इधर मैं देखता हूँ, भाई हम तो होम्योपैथी दवाई लेंगे, साइड इफेक्ट नहीं होता है। ऑर्गेनिक फूड पे तो माहौल भी बदल रहा है, लोगों का ये जो माइंड सेट चेंज हो रहा है, यहाँ भी वही सर्किल आ रही है। क्या एलोपैथ टू आयुष, आयुष टू आपका जो है आयुष की तरफ हमारा रुझान बन रहा है और लोगों का दिमाग बदल रहा है। एक इसमें भी अच्छी शुरुआत है जी। तो अभी जो हम बात कर रहे थे दीपक साहब, ये जो कोविड है, कोविड में भारत को अगर अपने देखा जाए तो गांवों ने बचाया। मतलब गांवों के लोगों को नहीं हुआ, इससे हमारी काफी रेशियो कम दिखता है, कितने ही इन्फेक्टेड हैं, क्योंकि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन गांव में रहती है और लोग गांव में भी चले गए। अभी भी हमारे शहरों में भी जिनके फार्म हाउसेज वगैरह हैं, वो लोग वीकेंड में वहां चले जाते हैं।
कि वहां पे हम इन्फेक्टेड नहीं होंगे, बहुत कम पॉपुलेशन है। तो अगर ओवरऑल अपने भारत की समस्याओं को देखा जाए कोविड से रिलेटेड, तो गांवों ने हमें बहुत बचाया। गांवों के कम लोग इन्फेक्टेड होते हैं, गांवों की रिपोर्ट्स भी आपको कम आएंगी, शहरों के पे केंद्रित है। इसलिए भी मुझे लगता है कि गांवों का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो उस पे और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है। ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम है, मैं इससे इतना प्रभावित हुआ था आपने जो बताया कि मुझे लगता है हीरालाल साहब इसको जरूर सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये मिशन में भी, हेल्थ मिशन में भी है, मॉडल गांव भी बना रहे हैं। इसमें सर अगर हर गांव में एक बच्चा, ये इसलिए डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर कर दिया जाए कि आप बेटा सबसे बात कर करके, जितने भी ओल्ड लोग हैं उनके ऑथेंटिक नॉलेज को, जिससे फायदा हुआ है कभी भी, 5 बार फायदा है, 10 बार खाया अगर 5 लोगों को भी हो गया, तब भी हम उसको ऑथेंटिक नॉलेज मान सकते हैं। तो मुझे लगता है भारत का जो चिकित्सा पद्धति है, पुरानी चिकित्सा पद्धति, वो हमें बहुत सुदृढ़ रखेगी। आगे आने वाले समय में हम लोग बहुत अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे। जी 5 मिनट है और अपने पास 5 मिनट में कर सकते हैं कुछ बात और। जी, जी। दीपक तो साहब। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपने बोला कि बच्चों को तैयार किया जाए, एक आर्मी तैयार करी जाए जो डॉक्यूमेंट करना चाहे। अब क्या तकलीफ़ क्या हो गया है इस दौर में, जो मैं 20 से 30 सालों की बात करता हूँ, तो हमने संवाद करना बंद कर दिया, हमने डायलॉग एस्टेब्लिश करना बंद कर दिया, अपने बुजुर्गों से बातचीत करना बंद कर दिया। आप बच्चों को देखें, बुजुर्गों से बात करने का उनके पास वक़्त नहीं है, सब गैजेट्स में लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन में हैं, प्ले स्टेशन लगा हुआ है, कंप्यूटर पे खेल रहे हैं। घरों के अंदर कैद हो गई है, गब्दू हो गए हैं बच्चे। मतलब पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा दोष रहा है इसमें कि जो संस्कार दिए कि बगैर कार्टून दिखाए बच्चा खाना नहीं खा रहा मुँह में, माँ उसको एक सीरियल चालू करती है, कार्टून चालू करती है, तब बच्चा खाना शुरू करता है। इस चीज़ को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। पढ़े-लिखे लोगों के बीच में सबसे बड़ी समस्या है। दुविधा ये है कि जो सत्यानाश हुआ है हमारे कल्चर का, उसमें पढ़े-लिखे लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमने इस चीज़ को जिसको डिग्रेड किया है, हमें उन वैल्यूज़ को समझनी पड़ेगी कि हमारी माँ ने तो कभी हमें कोई कार्टून नहीं दिखाया। हमें तो जो मिलता था, जो खाते थे, हम वही खाते थे। अब आपने बच्चों को पैक्ड फूड देना शुरू कर दिए, बगैर पाउच रखे तो खाना नहीं चलता लोगों का। जब बगैर नमकीन और बगैर काले ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स हैं, बुलबुले वाले, वो लेकर खाना खाते हैं। तो हमने कहाँ से अपने आप को डिग्रेड करना शुरू करा और किस स्तर पे जा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि गाँव में बच्चों की वो फ़ौज बनाई जाए, जो बुजुर्गों से बात करे, बुजुर्गों से खेलना सीखे, बुजुर्गों के ज्ञान को, न सिर्फ हर्बल मेडिसिन के, बल्कि हर एक छोटी-छोटी चीज़ों को बुजुर्गों से बात, दोनों के लिए अच्छा होगा। ये बुजुर्गों के लिए एक हीलिंग फैक्टर होगा, जो एक समय लोनलीनेस फ़ील करते हैं, उन्हें और वो उनको इम्पोर्टेंस लायनलीनेस फील लगेगा, होगा, उनको उनको अपना इम्पोर्टेंस फ़ील इम्पोर्टेंस फील होगा। होगा। और जी। बच्चों को बहुत सारी माइथोलॉजी, वो अमर चित्र कथाएँ और जो कॉमिक्स हुआ करती थी, जो आप हम पढ़ा करते थे, अब कौन बच्चा देखता है, कौन बच्चा पढ़ता है? तो ये हम सब पढ़े-लिखे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि उनको रूट्स तक ले जाएँ। अगेन वही बात, माँ के गर्भ में बच्चा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बच्चे पे मेडिसिन नहीं देनी है, माँ को देनी है, क्योंकि माँ से फीडिंग हो रही है उसकी। तो हमें रूट कॉज़ पे जाना पड़ेगा, समस्याओं की जड़ों तक पहुँचना पड़ेगा। पेड़ में यदि रोग हो गया है, पौधे में रोग हो गया है, तो पत्तियों पे छिड़काव मत कीजिए, मिट्टी को सुधारिए वहाँ की। मिट्टी जी। सुधरेगी, पेड़ अपने आप हेल्दी हो जाएगा। सर आपसे फाइनल मैसेज, फाइनल वर्ड्स। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि हम लोगों को गांव की खोज, जो बच्चे हैं, सारे बच्चे स्कूल के जो भी बच्चे हैं, उनसे कहना चाहिए कि गांव की खोज पे अध्ययन करो कि हमारा गांव पहले, चले जाओ पिछले 10 साल तक, 10 मतलब पीढ़ी तक, और ढूंढो कि पहले गांव कैसे इम्प्रूव किया। हमारे परदादा के जमाने में, तो दादा के जमाने में, तो बाबा के जमाने में, तो पिताजी के जमाने में गांव कैसे डेवलप हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ। कैसे इवॉल्व हुआ। सर आपने एक बहुत बढ़िया बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। कहानियां उसके समझ में आ जाएंगी। मुझे लगता है दीपक साहब एक और बात उसमें जोड़नी चाहिए, जो आपने बताया कि ट्रेडिशनल नॉलेज को करना है हर परिवार को, क्योंकि हम लोग अपने थर्ड जनरेशन के आगे लोगों के बारे में कुछ जानते ही नहीं। सिर्फ परदादा है, दादा परदादा तक भले जानते हो, उसके आगे तो हम जानते ही नहीं कुछ। तो अगर आज के बच्चे थोड़ा सा और रिसर्च करें, अपने ग्रैंड टू ग्रैंड फादर, एटलीस्ट 5-6 जनरेशन तक कुछ जानने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है ये संस्कृति का हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ियों तक जो हमारी कल्चर है और जो हमारे परिवार हैं, क्योंकि देखिए अगर आपका पास्ट संरक्षित नहीं, सुरक्षित नहीं, आप जानते नहीं हो अपने पास्ट को, तो भविष्य के बारे में भी आप बड़े असमंजस में रहोगे, बड़े कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। अगर आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे थे, तो एक इस पे भी काम करने की जरूरत है। वही बात मैंने कही थी, जो डायलॉग वाली बात करी थी, कि एक बार बच्चे बुजुर्गों से बात करना शुरू करेंगे, घंटे घंटे भर उनके साथ बैठेंगे ना,
तो अपने आप चीजें बन के आएगी कि मेरे पापा ऐसे थे, तुम मेरे दादाजी ऐसे थे, वो दादाजी बताएंगे बुजुर्ग, तो जी। वो अपने आप आएगा। तो डायलॉग होना जरूरी ना, जब तक वो डायलॉग नहीं होगा, माँ बाप होते हैं तो बुजुर्ग वहां बैठे हैं, बहू वहां बैठी है, बेटा उधर कमरे में है, छोटा बेटा लैपटॉप में बैठा हुआ है, मोबाइल लेके बैठा हुआ है, वो एक हर कोई डिजेक्टेड फील कर रहा है, और ये डिप्रेशन का कारण भी होता है बहुत सारा। तो जब तक फैमिली जब मिलेगी ना एक साथ खाना खाने की आदत, कितने फैमिलीज में देखा हूं मैंने, सालों साल मैंने एक साथ किसी मेंबर को खाते हुए नहीं देखा खाना। एक जी। उस समय आ रहा, एक उस समय आ रहा, हम जो जमीन पर बैठ के चटाई बिछाकर एक साथ खाना खाए थे, वो दौर देखे हुए अरसा हुआ। Thank you so much. In fact, I thank all my audience who are connected from all over the world. हमें दिखाई पड़ रहे हैं बहुत सारे लोग जुड़े हुए। स्वाति ठाकुर जी वाचिंग, प्रदीप प्रजापति इज वाचिंग, बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यूअसली जुड़े हुए हैं। खुशबू झा इज वाचिंग फ्रॉम रांची. So a lot of people are connected from everywhere, from around the world. In fact, thank you so much, all the audience, for your love, your support. हीरालाल साहब, आपका सर तहे दिल से शुक्रिया। आपने कोलकाता से हमारे लिए वक्त निकाला, इतने बिजी शेड्यूल में आप इलेक्शंस ओवरसी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आप कर रहे हैं। दीपक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बस प्लेजर, हम आपके साथ, आप लोगों के साथ हम पूरी रात बातें कर सकते हैं इस तरह की, और लेकिन हमें समय सीमा का ध्यान रखना है। साथ में एक बहुत बढ़िया बात जो समझ में आई कि हम सब लोग जो हीरालाल साहब हमेशा एक चेंज मेकर ढूंढते हैं, हर गांव में कि एक चेंज मेकर होना चाहिए। हम सब लोगों को जितना अपने बस में है, जितने अपनी क्षमता है, उसके हिसाब से चेंज मेकर, चेंज एजेंट का काम करना चाहिए। और अगर ये बातें हम करते रहें तो हीरालाल साहब ने 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मॉडल गांव का जो एक हंगामा किया, वो सारी दुनिया में ऑनलाइन के थ्रू पहुंच रहा है। हम अगर ये भी करना शुरू हो कि नहीं, हर्बल मेडिसिन, इनका ट्रेडिशनल नॉलेज को संरक्षित करना है, अपने घर के परिवार की हिस्ट्री को तैयार करना है, डॉक्यूमेंट करना है, क्योंकि हम उसके भुक्तभोगी, हमें खुद पता नहीं है कि हमारे 4 पीढ़ी पहले कौन था। हम जानना चाहते हैं, क्योंकि हम कहीं पढ़ रहे थे आज की जो ह्यूमन ब्रेन है कुछ 1.97 मिलियन ईयर ओल्ड है। आज मैं कुछ कहीं पढ़ रहा था, आप लोगों से बात करना तो बहुत रिसर्च कर रहा था, तो कुछ मिलियन ईयर ओल्ड ह्यूमन साइंस, ह्यूमन ब्रेन है हमारा। तो ये जो ब्रेन है अगर इतना पुराना है, तो हमें 200 साल पहले की बातें भी नहीं पता है। अगर हम 200-500 साल पहले बातें हम अपने बच्चों तक पहुंचाते रहें, अपने परिवार की हिस्ट्री तो लिखी जा रही है, हिस्ट्री तो लिखी जाएगी, लेकिन जो अपने परिवार की बातें हैं, अपने गांव की बातें हैं, अगर इनको भी लिखा जाने लगे, हम सब लोग ये पहल करें, हीरालाल साहब जैसे लोग जो एक पावर की पोजीशन में हैं, जो कर सकते हैं, रियल करवा सकते हैं लोगों से, तो मुझे लगता है अपने समाज का, अपने देश का बहुत भला होगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. With this, have wonderful times. Take care. Corona is spreading very thick and fast nowadays, so please stay safe. And with this, we are ending this broadcast. Have nice times. थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।